Hello students, today we are starting the February Revolution in Petrograd. So let's start. In the winter of 1917, conditions in the capital Petrograd were grim. The layout of the city seemed to emphasize the divisions among its people. The workers' quarters and factories were located on the right bank of the river Neva. On the left bank were the fashionable areas, the Winter Palace, and official buildings, including the palace where the Duma met. In February 1917, food shortages were deeply felt in the workers' quarters. The winter was very cold. There had been exceptional frost and heavy snow. Parliamentarians wishing to preserve elected government were opposed to the Tsar's desire to dissolve the Duma. On 22nd February, a lockout took place at a factory on the right bank. The next day, workers in 50 factories called a strike in sympathy. In many factories, women led the way to strikes. This came to be called the International Women's Day. Demonstrating workers crossed from the factory quarters to the center of the capital, the Nevsky Prospect. At this stage, no political party was actively organizing the movement, as the fashionable quarters and official buildings were surrounded by workers. The government imposed a curfew. Demonstrators dispersed by the evening, but they came back on the 24th and 25th. The government called out the cavalry and police to keep an eye on them. On Sunday, 25th February, the government suspended the Duma. Politicians spoke out against the measure. Demonstrators returned in force to the streets of the left bank on the 20th, 26th. On the 27th, the police headquarters were ransacked, the streets thronged with people raising slogans about bread, wages, better hearts, and democracy. The government tried to control the situation and called out the cavalry once again. However, the cavalry refused to fire on the demonstrators. An officer was shot in the barracks of a regiment, and 3 other regiments mutinied, voting to join the striking workers. By that evening, soldiers and striking workers had gathered to form a Soviet or council in the same building as the Duma met. This was the Petrograd Soviet. The very next day, a delegation went to see the Tsar. Military commanders advised him to abdicate. He followed their advice and abdicated on 2nd March. Soviet leaders and Duma leaders formed a provisional government to run the country. Russia's future would be decided by a constituent assembly, elected on the basis of universal adult suffrage. Petrograd had led the February Revolution that brought down the monarchy in February 1917. So students, 1917 में ठंड के समय में सर्दियों में राजधानी जो थी पेट्रोग्रेड, उसकी हालत बहुत खराब थी। मान लो ऐसा लग रहा था सारी जनता की अलग अलग विभिन्नताएं और उन्हों को देखकर ही इसकी बनावट की गई। मजदूरों के क्वार्टर्स और कारखाने जो थे वो नेवा नदी के राइट साइड पर थे और लेफ्ट साइड पर फैशनेबल इलाके जो थे, विंटर पैलेसेस और गवर्नमेंट की जो बिल्डिंग्स थी वो थे। जिस महल में ड्यूमा की बैठकें होती थी वह भी इसी तरफ था, लेफ्ट साइड। फरवरी में मजदूरों के इलाकों में खाने की चीजों की बहुत ज्यादा कमी हो गई और उस साल ठंड भी बहुत ज्यादा पड़ी, भीषण कोहरा, बर्फबारी हुई। तो जो संसद के जो प्रतिनिधि थे वो चाहते थे कि जो सरकार है वो बची रहे और जार जो ड्यूमा को भंग करने की जो कोशिश कर रहा है वो ना हो सके, भंग ना कर सके वो। तो 22 फरवरी को राइट साइड में
एक फैक्ट्री में तालाबंदी करने की घोषणा कर दी गई। अगले दिन फैक्ट्री के मजदूरों के समर्थन में 50 और फैक्ट्रियों ने मजदूरों में हड़ताल का ऐलान कर दिया। बहुत सारे कारखाने जो थे उनका जो नेतृत्व थी वीमेन कर रही थी, और इसी दिन को इसलिए इंटरनेशनल वीमेंस डे के रूप में मनाया जाता है। तो ये जो रेवोल्यूशनरीज थे, ये जनता जो थी रेवोल्यूशन में जो शामिल थी, ये जो वहाँ की जो सिटी थी, जो बस्ती थी, वहाँ के जो राजधानी थी नेवेस्की प्रोस्पेक्ट तक आ गई, बीच में पहुंच गई। और इस समय कोई भी राजनीतिक पार्टी थी जो आंदोलन के रूप में संगठित होकर उसको संचालित नहीं कर रही थी। ये सिर्फ ये जो लेडीज थी वो और जो कुछ लोग थे फैक्ट्री के, वो सब लोग कर रहे थे। जब ये फैशनेबल रिहायशी इलाकों में और सरकारी इमारतों के मजदूरों ने जब वहां पर सारा एरिया घेर लिया तो गवर्नमेंट ने वहां पर कर्फ्यू लगा दिया। शाम तक जितने भी जो लोग थे जो प्रदर्शन कर रहे थे वो तितर बितर हो गए, लेकिन 24 और 25 को वो फिर इकट्ठे हो गए। सरकार ने उन पर नजर रखने के लिए बहुत सारे जो घुड़सवार सैनिक होते हैं और पुलिस होती है उनको वहां पर देखने के लिए, निगरानी के लिए रख दिया। फिर संडे 25 फरवरी को सरकार ने ड्यूमा को फिर हटा दिया, बर्खास्त कर दिया, उसे सस्पेंड कर दिया। सरकार के इस फैसले के खिलाफ फिर बयानबाजी होने लगी। 26 डेट को बहुत बड़ी संख्या में लेफ्ट साइड में लोग इकट्ठे हुए। 27 को पुलिस ने उनको हमला करके तहस नहस कर दिया और सरकार ने वहां की स्थिति को नियंत्रण कर लिया इस तरह से। लेकिन जो घुड़सवार जो सैनिक थे जिन्होंने भीड़ को नियंत्रित किया था, वो गवर्नमेंट ने आदेश दे दिया कि उन पर गोली चला दो, तो उन लोगों ने इस चीज को मना कर दिया कि नहीं, हम गोली नहीं चलाएंगे। और फिर उनको गुस्सा भी आ गई, तो गुस्साए जो सिपाही थे उन्होंने रेजिमेंट की बैरक में ही अपने ही एक अफसर पर गोली चला दी। तो इस तरह से रेजिमेंट में भी बगावत शुरू हो गई। तो एक तरफ तो हड़ताली मजदूर, दूसरी तरफ रेजिमेंट की बगावत। तो इस तरह से क्या हुआ, वहां पर फिर ये डिसीजन लिया गया कि एक परिषद बना दी जाए जो कि उसी इमारत में जमा हुए, और जहां पर ड्यूमा की बैठक होती थी वहां पर एक सोवियत या एक परिषद बना दी जाए। और यहीं से फिर जो था पेट्रोग्रेड, इसका सोवियत का जन्म हुआ। फिर नेक्स्ट डे एक प्रतिनिधि मंडल जो था वह पहुंचा कि जार से मिलने के लिए, कि सैनिक कमांडरों ने सलाह दी कि वो राजगद्दी को छोड़ दे, क्योंकि इतने ज्यादा ये सब रेवोल्यूशन हो रहे हैं तो उसे राजगद्दी को छोड़ देना चाहिए। और उसने उस सलाह को मान भी लिया और उसने 2 मार्च को गद्दी छोड़ दी। फिर सोवियत और ड्यूमा के नेताओं ने शासन को चलाने के लिए एक गवर्नमेंट बना ली और इंटरनल गवर्नमेंट बना ली और तय किया कि रूस के भविष्य के बारे में जितने भी फैसले हैं वो जो पार्लियामेंट असेंबली है वहाँ की जो संविधान सभा है उसे सौंप दिए जाए, और उसका जो चुनाव है वो वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा, मतलब वोटिंग के आधार पर होगा। तो फरवरी 1917 में जो जार था उसे हटा दिया गया, राजशाही को गद्दी से हटा दिया गया, और पेट्रोग्रेड का जो झंडा था, जो क्रांति का झंडा था, वो जनता के हाथों में आ गया। यहाँ बॉक्स 1 में वीमेन इन द फेब्रुअरी रिवॉल्यूशन में वुमेन का क्या भूमिका थी वो इसमें बताया गया है। वीमेन वर्कर्स ऑफन इंस्पायर्ड देयर मेल co-workers at the Lawrence telephone factory. Marfa Vasileva almost single-handedly called a successful strike. Already that morning, in celebration of Women's Day, women workers had presented red bows on the men. Then Marfa Vasileva, a milling machine operator, stopped work and declared an impromptu strike. The workers on the floor were ready to support her. The foreman informed the management and sent her a loaf of bread. She took the bread but refused to go back to work. The administrator asked her again why she refused to work, and she replied, I cannot be the only one who is satiated when others are hungry. Women workers from another section of the factory gathered around Marfa in support, and gradually all the other women ceased working. Soon the men donned
their tools as well as, and the entire crowd rushed into the street. तो बहुत सारी महिला कामगार थी, अफसर थी, जो अपने जो को वर्कर्स थे उनको प्रेरित करती रहती थी। इसी तरह का एक वाकया वहां पर दिया गया है हड़ताल कि किस तरह से एक सफल हड़ताल को अंजाम दिया एक महिला ने। कि सुबह महिला दिवस हो रहा था, वीमेंस डे चल रहा था और वहां पर समारोह चल रहा था। तो महिला जो वर्कर्स थी उन्होंने पुरुष वर्करों को लाल पट्टियां बांध दी। इसके बाद मिलिंग मशीन में वो अपना काम उन्होंने बंद कर दिया करना और आनन फानन में हड़ताल का ऐलान कर दिया कि हड़ताल होगी। तो जब वहां पर जो कई मजदूर थे उन्होंने उनका समर्थन करना शुरू कर दिया। तो जो फोरमैन था उसने जाकर मैनेजमेंट को सूचित किया कि ये लोग हड़ताल कर रहे हैं। तो उन्होंने उसके लिए पाव रोटी भिजवा दी कि तुम खा लो, हड़ताल बंद कर दो। लेकिन उसने पाव रोटी तो ले ली, लेकिन उसने हड़ताल पर उसने काम पर लौटने से मना कर दिया। जब वहां का जो एडमिनिस्ट्रेटर था उसने पूछा कि काम क्यों नहीं करना चाहती, तो फिर उसने कहा कि जब बाकी सारे भूखे हो तो मैं अपना अकेले का पेट कैसे भर लूं। और इस तरह से उसके समर्थन में और बहुत सारे दूसरे विभाग के लोग भी आ गए और भी महिलाएं आ गई और धीरे धीरे सारी औरतों ने काम रोक दिया। और जल्दी ही ये सारा देख करके फिर वहां पर जो पुरुष थे, मेल थे, उन्होंने भी अपने औजार जमीन पर फेंक दिए और इस तरह से बहुत बड़ा एक जो भीड़ थी वो सड़क पर निकल गई, स्ट्रीट पर निकल गई हड़ताल करने के लिए।